Dear viewers, please welcome back. See, a new day and new topic today. Our new topic is subject-verb agreement. See, the title itself, this grammatical title, subject-verb agreement, this itself defines the title. Because if we read this here, subject-verb agreement means subject and the verb of that particular sentence should agree with each other, but they should agree with each other in number. So the subject verb agreement is basically a topic in which where we will be having the questions in the form of fill in the blanks. There we will be checking if whether the subject and the verb they are agreeing with each other or not. The verb which we are putting, it is according to singular or according to the plural or some exception questions. In this topic we will be basically learning about that. See, in this topic you must pay correct attention. If I start writing on board and if I start saying you people, there are very few things which will be hitting your head. But if I read out and if I write down the example and if I explain you, that will be going very, very clearly into your head. So I ask you people to please pay attention for this particular topic. See, first of all I will be going with the definition. Subject-verb agreement definition implies that the subject of the sentence and the verb of the sentence must be in agreement in number. The same thing which I told you all in our language. अब इसमें देखिए, now we have few points here. If we are going through those points and if you are understanding those 20 to 25 points, your subject-verb agreement will be crystal clear. Mark my word, your subject-verb agreement will be crystal clear. 99% questions will be solved from you people. Why I'm not giving you 100%? Because there is a reason. Nobody can guarantee you 100% success in anything. So here I am speaking that 99% at least if you go through these points, these 20 to 25 points, you will be able to solve all your questions. So let us start. अब देखिए इसमें सबसे पहला point है, first thing दिया गया है, if s is added in the end of a noun it becomes plural, but in case of a verb it becomes singular. This is true because if we are writing boy here, I'm sorry. Suppose if you are writing boy here, if we are adding s at the end of this, yes, this is becoming plural. Same way, if we are taking play here, this is verb, and we are adding s here, this is becoming v5, which we use in singular subjects. So, आपका first point आपको यही जानना है कि if s or es is added in the end of a noun, it becomes plural, but in case of a verb, it becomes singular. See why I am going through this point. I am teaching you now. I am explaining you. If you listen very carefully, I would be putting up the same notes in the description. If you go through these things very clearly, your points would be clear in these things. Kindly pay attention here. Suppose I am giving you an example of this. The boy plays, and next the boys play. See here plays, this is in V5. Here subject is in singular form. Here play, this is in subject is in plural form. That's the reason we said here if you are adding s or es to the noun, this becomes plural. If you are adding s or es to the verb, it becomes singular. See, we are using it in singular form, we are using this in the plural form. That was your first point. अब इस चीज में देखिए there are your second point. अब इस चीज में exceptions आप देख लीजिए. See, there are few exceptions in this point. How we will be going through these things. Look at this here. See, we use a plural verb with singular subject in an optative sentence. Now, what is an optative sentence? An optative sentence is a sentence. Optative sentence क्या होता है? Which expresses a kind wish or prayer या curse. ठीक है? Suppose if this is here, God bless you. So we are writing God bless you. Optative sentence this is.
अब देखिए गॉड ब्लेस यू, गॉड, with God we are not using blesses you, we are using bless you because this is an optative sentence. In similar fashion, there is a second topic in this, the sentence which gives us the thought of imagination, desire, and it contains the words such as I wish, as if, as though, if, etc. We use a plural verb with a singular subject. अब इसका मतलब क्या हुआ? See, कोई भी चीज if we are imagining कि अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, तो imagination sentence अगर जो रहा, then even though your subject is in singular form, yes, we use a plural verb there. इसका meaning क्या है? जैसे for example if I am saying I wish I were a king, I wish I were a king. Now kindly listen to this sentence. Normally हम लोग क्या यूज करते हैं? जैसे I के साथ I was playing, I was there, I was sitting here. लेकिन इस चीज में देखिए I wish मतलब इसमें ये सोच रहा है, he is imagining something. So in sentence which you are imagining something, I wish I were a king. यहाँ पे subject क्या है? Subject is singular, लेकिन still we are using here were. ये आपको सोच रखना है. इसके साथ एक और एग्जाम्पल है, if I were a bird, I would fly to you. Yes, in this also we are starting if से, means imagination. If I were a bird, I would fly to you. Your next topic, your next rule is, see, the structure of few sentences is as follows. अभी कुछ sentences के structures देखते हैं. What are those structures? अब उसमें आपको देखना पड़ेगा how these things are changing. Yes, the structure of few sentences is as follows. Suppose your structure is noun plus preposition plus noun. मतलब यहाँ पे देखिए the water of these rivers dash dirty. The water of these rivers dash dirty. आपका ब्रैकेट में है is and are. This will be a better thing. इसमें मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए. The structure of few sentences is as follows. पहले noun, तो the water is noun here. Yes. Then preposition, of एक preposition है. Then again noun, these rivers, ये एक फिर से noun है. In such sentences the use of the verb is according to the first noun. अब ये भी noun है और ये भी noun है. The water है, these rivers है. Rivers plural में है, the water हमेशा singular होता है. तो बहुत लोग these rivers को देख के R लगा देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपका subject verb agreement में verb होगा is. आपको clear है यहाँ पे? Next point, अगर जो इसी में if you are changing this topic, the flowers, मैं यहाँ पे plural कर दे रहा हूं, the flowers of my garden, the flowers of my garden dash charming, the flowers of garden dash charming. अब इस चीज में देखिए, यहाँ पे फर्स्ट नाउन फ्लावर्स प्लूरल है, गार्डन सिंगुलर है, तो इज होगा या आर होगा? आपको रूल के अनुसार से दिया गया है कि आप अगर जो सेंटेंस में सबसे पहले ऊपर में नाउन हो, फिर ऑफ हो, और फिर से अगर जो नाउन हो, तो उस चीज में आप फर्स्ट नाउन के अनुसार से आप लगाएंगे. तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पे यू विल बी यूजिंग आर हियर. काइंडली पे अटेंशन हियर. आपको स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस मैं ऐसे कराते चला जाऊंगा, ये बेटर रहेगा मेरे लिए, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल दोस थिंग्स. आपके पास क्लियर नोट्स रहेगा. यू विल बी हैविंग द क्रिस्टल क्लियर नोट्स. इफ यू गो थ्रू, दीज आर माय हैंड रिटन नोट्स. If you go through, it will be particularly very clear to you people. Kindly pay attention here कि मैं इसको solve कैसे कर रहा हूं, please. Next आपको क्या दिया गया है? दिया गया the structure of few sentences is as follows. इसमें दिया गया indefinite number या quantity. Starting में quantity रहेगा, फिर से preposition रहेगा और फिर से noun रहेगा. In such sentences the use of the verb is according to noun which comes later. अब इस चीज में देखिए noun था, of था, noun था, लेकिन अब इसमें आपको रखना पड़ेगा क्वांटिटी. ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं ये क्या है. क्वांटिटी रहेगा, फिर ऑफ यानी कोई प्रीपोजिशन रहेगा, फिर से नाउन रहेगा. इसमें फर्स्ट नाउन को प्रीफर कर रहे थे, लेकिन इसमें आपको सेकंड वाले नाउन को प्रीफर करना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल आपको दिया गया है क्या, प्लेंटी. प्लेंटी एक क्वांटिटी है, बहुत ज्यादा, ये क्वांटिटी है. प्लेंटी ऑफ एग्स, प्लेंटी ऑफ. आई विल बी गोइंग इन हिंदी बेसिकली, क्योंकि इसको आपको समझना जरूरी है, because these terms will be in English, लेकिन in your formal language, if you break this into your formal language, तब आपको इसको solve करना आसान रहेगा. So that is the particular reason I am going perfectly in Hindi. So I will try my level best that this reaches to you correctly. Yes, क्योंकि एक बार इसको solve कीजिएगा, you will have a numerous
questions in your head. You will have doubt while writing sentences. Am I writing this correct or not? Am I using correct subject verb or agreement or not? ये इस चीज के लिए आपको बनाया जा रहा है. Kindly make clear, make your grammar clear here. जैसे दिएगा plenty of eggs. अगर यहाँ पे if you have a gap here, been brought. Yes. अगर जो plenty of eggs आपके पास you have has और have option. ये तो आपको पहले पता होना चाहिए. Has is singular and have is plural. आपको बताया गया कि क्वांटिटी रहे, देन ऑफ रहे, देन नाउन रहे, तो इस चीज में आपको सेकंड वाले नाउन के अनुसार से आपको वर्ब लगाना है. मतलब सेकंड वाला नाउन सिंगुलर रहा तो सिंगुलर वर्ब, सेकंड वाला नाउन प्लूरल रहा तो प्लूरल वर्ब. अब इस चीज में देखिए आपको दिया गया इन सच सेंटेंसेस द यूज ऑफ द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू नाउन व्हिच कम्स लेटर. तो व्हिच कम्स लेटर एग्स. एग्स इज सिंगुलर और प्लूरल? इट इज इन प्लूरल. तो यहां पे हैज नहीं, वी विल बी यूजिंग हैव. क्लियर? नेक्स्ट माय डियर चिल्ड्रन, अब देखिए आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट है, नोट कीजिएगा इसको. देयर इज डिफरेंस बिटवीन ए नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ. ये टोटल आपका अलग है. ए कहीं कहीं लिखते हैं, यू राइट ए नंबर ऑफ, ऐसा लिखा रहता है कहीं. नेक्स्ट कहीं कहीं लिखा रहता है द नंबर ऑफ. काइंडली पे अटेंशन हियर. ए नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ. वी यूज ए सिंगुलर वर्ब आफ्टर द नंबर ऑफ एंड प्लूरल वर्ब आफ्टर ए नंबर ऑफ. अगर सेंटेंस ए नंबर ऑफ, अगर एक सेंटेंस में ए नंबर ऑफ रहा, इफ द पर्टिकुलर लाइन, आई मीन पर्टिकुलर वर्ड्स, ए नंबर ऑफ इज प्रेजेंट इन ए सेंटेंस, तो आपको आंख बंद करके प्लूरल वर्ब यूज करना पड़ेगा. नेक्स्ट द नंबर ऑफ रहा, इफ देयर इज द नंबर ऑफ प्रेजेंट, देन यू विल बी यूजिंग सिंगुलर वर्ब. मैं आपका एग्जांपल बता दे रहा हूं इसमें. ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो ए नंबर है तो हैव फेल्ड इन एग्जामिनेशन. अगर जो उसमें ऑप्शन रहा सेंटेंस के अनुसार से इज या आर, तो आर. यस. अगर जो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको स्टूडेंट्स पे नहीं जाना है, ए नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ को आपको क्लियर करना है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल. सी डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स. आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू. काइंडली पे गुड अटेंशन हियर सो दैट इफ यू गो थ्रू द नोट्स, जो नोट्स आप देखेंगे आपका पॉइंट्स क्लियर रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट वी आर कमिंग टू स्ट्रक्चर नंबर 5. In this sentence, if you have a singular collective noun and of and plural noun, मतलब अगर अब आपके पास रहेगा singular collective noun plus of plus noun, ठीक है. क्या रहेगा आगे में? SCN मतलब singular collective noun. मैं इसीलिए कहता हूं कि वीडियो ध्यान से देखिए. मैं शॉर्ट फॉर्म्स इसलिए लिख रहा हूं कि so that it is easy for me to explain. It is less time consuming child. अब इसमें देखिए, in such sentences the verb is always singular. आपका पहला पॉइंट में पहले वाले नाउन पे क्लियर करना था, सेकंड वाले पॉइंट में सेकंड के नाउन के अनुसार से क्लियर करना था, थर्ड वाले में SCN मतलब हम आपको क्या बताए थे? SCN मतलब क्या? इन सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ऐसा में हमेशा वर्ब सिंगुलर ही रहेगा. कलेक्टिव नाउन हम आपको क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं. ए बंच ऑफ टीम, ए बंच ऑफ कीज, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ऐसा लिखते हैं. तो अगर जो लिखते हैं ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है. डैश कम हियर, यहां पे आए हैं. अगर जो आपके पास है हैज या हैव, तो अगर आप रूल एक बार पढ़े होंगे कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ ऑफ और नाउन रहे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर हो जाता है. सो दिस बिकम्स हैज. यस. नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है? अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. द वर्ड्स सच एज गवर्नमेंट, board, staff, committee, company, public, jury, etc. can be used as both singular and plural noun. मतलब कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में यूज किए जा सकते हैं. If you assume such words as singular, you must keep it singular till the end. If you assume such words as plural, you must keep it plural till the end. अब मैं इसका ये आपका एक्सप्लेनेशन आपको मैं करता हूं कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं. There are few words which can be either used as singular or which can either be used as प्लूरल. जैसे इसमें हम आपको बताए थे गवर्नमेंट, ज्यूरी, किसी का बोर्ड, कमिटी एक्सेट्रा, ये सब वर्ड सब आता है. एवरीथिंग कम्स अंडर सच सेंटेंस. जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया गया है द ज्यूरी. द ज्यूरी, यस, डैश डिवाइडेड. इसमें आपको एक और चीज ध्यान देना है, डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन. यस. नेक्स्ट मैं लिख दे रहा हूं The
jury dash divided in their opinion। अब इस चीज में आप देखिए, इस सेंटेंस में आपको दिया गया है इफ द प्रोनाउन ऑल्सो शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द वर्ब। सबसे पहले इस सेंटेंस को देखते हैं कि द ज्यूरी, ये बोला गया क्या कि दिस कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर एंड दिस कैन आल्सो बी यूज्ड इन प्लूरल। तो सबसे पहले यू विल गो थ्रू द पॉइंट, द ज्यूरी डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, ये आपका प्रोनाउन है। द ज्यूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब आपको इतना कॉमन सेंस आ जाना चाहिए कि इट्स सिंगुलर है एंड देयर प्लूरल है। तो जो सिंगुलर रहेगा इसका मतलब कंप्लीट सेंटेंस सिंगुलर में दिया गया है। जो प्रोनाउन प्लूरल रहेगा इसका मतलब कंप्लीट प्रोनाउन आपको प्लूरल में दिया गया है। जैसे इस चीज में दिया गया है, अगर आपके पास ऑप्शन है वॉज और वेयर का, आपको दोनों में यूज करना पड़ेगा। तो वॉज किस में यूज करेंगे? द ज्यूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन? नहीं, वॉज सिंगुलर है तो द ज्यूरी डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, तो यहां पे वॉज हो जाएगा एंड हियर यू विल बी यूजिंग एज वेयर। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है? वी विल गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। See, your next point is that if the subject of a sentence indicates a particular distance, time, amount, weight, etc., then even the plural subjects will have a singular verb because such subjects do not indicate the numbers. It indicates a particular quantity. अब इसमें क्या दिया गया है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, टाइम के बारे में, अमाउंट के बारे में, वेट के बारे में। अगर वो मेंशन किया गया डिस्टेंस, अमाउंट, टाइम एंड वेट, इसका मतलब वो पर्टिकुलर जैसे आप 40 माइल्स ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट 40 माइल्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि एक माइल्स करके बताया जा रहा है। इसमें आप हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे। अगर जो आपको सब्जेक्ट प्लूरल भी लगे फिर भी आपको सिंगुलर में यूज करना। जैसे यहां दिया गया 40 माइल्स, एक लंबा डिस्टेंस है तो 40 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, गलत हो जाएगा। तो 40 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। सुन रहे हैं मेरी बात? नेक्स्ट, 10 आवर्स इज इनफ फॉर द वर्क। 10 आवर्स दिया गया, बहुत लोग 10 आवर्स जैसे इसको प्लूरल में देखेंगे 10 आवर्स आर लिख देंगे, लेकिन ये गलत होगा। 10 आवर्स इज इनफ फॉर द वर्क, ये आपको एग्जाम्पल में दिया गया है। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है? इफ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द नेम ऑफ ए पर्सन, कंट्री और ए बुक, then we use a singular verb. Example, United States of America is a rich country. The United States of America looks like plural, लेकिन ये है नहीं plural. This is in singular form. So इसमें आप verb भी क्या यूज कीजिएगा? Singular ही यूज कीजिएगा। Next coming here, if a noun is repeated after a preposition, if noun is repeated after a preposition, then that noun will be in singular form and the verb also will be in singular form. क्या बताया गया है कि अगर जो नाउन, ठीक है, एक प्रीपोजिशन के बाद रिपीट हो रहा है तो that noun will be in singular form and the verb also will be in singular form. ये मुझे लिखना पड़ेगा। जैसे सिटी, आफ्टर सिटी, ध्यान दीजिएगा मेरे बात को। सिटी नाउन है, यहां भी नाउन है, ये प्रीपोजिशन है, मतलब नाउन इज रिपीटेड आफ्टर ए प्रीपोजिशन। एक नाउन, दो नाउन रिपीट किया जा रहा है। आप देखिए दोनों सिंगुलर है, यस, सिटी आफ्टर सिटी। लेकिन अगर जो इसमें आपको दिया है सिटी आफ्टर सिटी डैश डेस्ट्रॉयड, मतलब डिस्ट्रॉय किया गया, वाज या वेयर, तो आपको हम क्या बताए थे? इफ इन सच सेंटेंसेस द वर्ब आल्सो विल बी इन सिंगुलर फॉर्म। अगर ये नाउन एंड ये नाउन रिपीटेड नाउन से सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। बहुत लोग सोचेंगे सिटी आफ्टर सिटी, एक सिटी के बाद दूसरा सिटी, यानी प्लूरल हो सकता है। सिटी आफ्टर सिटी वेयर डिस्ट्रॉयड, गलत है, दैट इज रॉन्ग। सिटीज आफ्टर सिटीज वेयर डिस्ट्रॉयड हो सकता है, लेकिन सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड ही होगा। ओके, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया? दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। द नाउन्स और द वर्ड्स दैट एग्जिस्ट इन पेयर ऑलवेज कंटेन्स अ प्लूरल फॉर्म। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, जैसे शॉर्ट्स हो गया, स्लीपर्स हो गया, शूज हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, सीजर्स हो गया, दे ऑलवेज एग्जिस्ट, दे वर्क इन पेयर। अगर जो आपको कैंची से कुछ काटना है, देन यू मस्ट कट इट विद बोथ, यू शुड यूज अ पेयर। स्पेक्स, आई कैन नॉट वेयर वन सिंगल स्पेक्स, आई कैन नॉट पुट ऑन दिस। शूज, एक पहन के आप यूज नहीं कर सकते हैं।
आपको हमेशा इसको पेयर में यूज करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग को क्या करना रहता है, इन सच सेंटेंसेस अगर जो आपको दिया रहेगा, इफ दिस इज रिपीटेड, इफ दिस इज गिवन इन पेयर फॉर्म, अगर जो डायरेक्टली पेयर मेंशन किया गया है, then you must use in this manner, and I am writing here on the board, kindly pay attention to this thing. See, अब इस चीज में आपको क्या दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया गया है माई स्पेक्टिकल्स, my spectacles dash faulty, yes. next दिया गया है my pair of scissors, my pair of scissors dash sharp, kindly pay attention here. अगर पेयर वाला सेंटेंस, जैसे देखिए स्पेक्टिकल्स भी पेयर में यूज करते हैं, सिजर्स भी पेयर में यूज करते हैं। See, if they give you a question like this, kindly calm yourself down. इसमें देखिए my spectacles, इसमें देखिए my pair of scissors। अब इस चीज में आपको क्या ध्यान देना है, अगर the word pair comes, अगर पेयर आ जाता है तो हमेशा याद रखिएगा कि उसमें वर्ब सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर। अगर पेयर मेंशन नहीं है तो उसमें वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। क्या होगा? वर्ब हमेशा प्लूरल। अब इस चीज में देखिए माई स्पेक्टिकल्स डैश फॉल्टी, इसमें दोनों में आपको इज या आर से कोई एक वर्ब फिल करना है। तो हम आपको बताए थे कि अगर जो पेयर का वर्ड उसमें रहा तो आपको वर्ब सिंगुलर लेना है, पेयर नहीं रहा तो वर्ब हमेशा प्लूरल लेना है। तो माई स्पेक्टिकल्स इसमें वर्ब नहीं है तो आर फॉल्टी, द पेयर ऑफ सीजर्स इज शार्प। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वन वी विल बी गोइंग इनटू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया गया है, few words are always in singular form, we cannot make them into plural by adding s or es, so we must always use a singular form। अब देखिए आपको ये चीज कॉमन एरर्स में भी आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सो पे अटेंशन हियर। जैसे इसमें कुछ कुछ शब्द ऐसे दिए हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, उसका प्लूरल नहीं होता है, लेकिन आपको कुछ कुछ वर्ड्स इसमें दिए गए हैं, ध्यान से देखिए उसका यूजेस कैसे होता है। जैसे दिया गया फर्नीचर, सीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ऐसे शब्द हैं जो हमेशा सिंगुलर में होते हैं। फर्नीचर्स नहीं लिख सकते, नॉलेजेस नहीं लिख सकते, न्यूजेस नहीं कर सकते हैं। दिस विल ऑल लुक लाइक नॉनसेंस एंड क्रीप इंग्लिश। यस, अब इसका अगर जो आपको क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से देखिएगा, ऑल माई लगेज, जैसे ऑल नहीं, या ऑल द लगेज, ठीक है, लगेज मतलब सामान, ऑल द लगेज डैश लॉस्ट। अगर जो आपके पास है was या आपके पास है where, इफ यू हैव was and where ऑप्शन, तो हम तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए ऑल द लगेज। यहाँ पे प्लूरल लग रहा है कि सभी लगेज के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन आपको डोंट मिसगाइड योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे डैश लॉस्ट में आपको was या where का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे लगेज दिया गया है, सो दैट विल ऑलवेज बी इन सिंगुलर फॉर्म, ऑल द लगेज was lost, the news is good। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या दिया इसी में बी पॉइंट, वर्ड्स लाइक पीपल, folk, cattle, police, children etc are always in plural form, they contain a plural verb as well। जैसे यहाँ पे दिया गया है the police have arrested the thief, इसमें क्या दिया गया, जैसे इसमें सिंगुलर, all the words will be used in singular form। there are few words like people, folk, cattle, police, children, ये हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं। इसके साथ the police has arrested नहीं लिख सकते हैं, the police have arrested the thief ही होगा इसमें। नेक्स्ट है नेम ऑफ few subjects, कुछ कुछ सब्जेक्ट के नाम, कुछ कुछ डिसीजेस, बीमारियों के नाम, कुछ कुछ स्पोर्ट्स के नाम, कुछ कुछ जगहों के नाम का एंड एस से होता है, लेकिन उसका यूज हम लोग सिंगुलर में करेंगे, क्योंकि हम तो आपको बता दिए हैं स्टार्टिंग में ही कि एनीथिंग विच यू आर यूजिंग, अगर जो इफ यू आर रीडिंग एडिंग एस टू ए नाउन दैट बिकम्स प्लूरल, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सब्जेक्ट भी नाउन है, डिसीजेस भी नाउन है, स्पोर्ट्स भी नाउन है, प्लेसेस भी नाउन है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान, जैसे मीजल्स, दिस इज अ काइंड ऑफ डिसीज, तो मीजल्स डैश ए डेंजरस डिसीज, इज या आर, तो मीजल्स डिसीज का नाम है, बहुत लोग अटेम्प्ट कर देंगे आर, नहीं, मीजल्स इज ए डेंजरस
disease. Physics is not an easy subject. Physics is not an easy subject. Physics R नहीं होगा, physics is होगा इसमें. Next आपको दिया गया है important one. If the structure of the sentence is the plus adjective, मतलब आपका स्ट्रक्चर है सेंटेंस का द रहे, उसके बाद एडजेक्टिव जुड़ा रहे. क्या रहे द के बाद? एडजेक्टिव. हम आपको डिफाइन किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव. An adjective is a word which defines a noun. An adjective is a word which defines a noun. जैसे इसमें दिया गया है, if the structure of this sentence is the plus adjective, then it will contain a plural verb. अगर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा the plus adjective, तो हमेशा वर्ब प्लूरल रहेगा. जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं द रिच डैश हैप्पी इज आर. आपके पास ये ऑप्शन है. तो द प्लस एडजेक्टिव द है, एडजेक्टिव रिच है, रिच पीपल एडजेक्टिव. द वर्ड रिच इटसेल्फ इज एन एडजेक्टिव. तो इसमें दिया गया है क्या? इफ द सेंटेंस, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस is the plus adjective, then it will contain a which verb? It will contain a plural verb. So this will be termed as are happy. Clear? Next आपको दिया गया है, we will be going to next point. Next point आपको दिया गया है in few sentences. In few sentences, the subjects are added by the words such as well as, along with, together with. ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. कुछ सब्जेक्ट में सेंटेंस को किस चीज से जोड़ा जाता है? इसमें जोड़ा जा रहा है एज वेल एज से, along with से, टुगेदर विथ से, विथ से, इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, एक्सेट्रा. इन सभी चीजों से जोड़ा जा रहा है. इन सब सेंटेंस में, इन सच सेंटेंस, द यूज ऑफ द वर्ब्स इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस. इस सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस का वर्ब आप किस चीज से यूज कीजिएगा? जो आपके सेंटेंस का सबसे पहला वर्ड रहेगा उसका. जैसे इसमें देखिए एक वर्ड दिया गया है एज वेल एज, है ना. तो जैसे आपका एग्जांपल है द स्टूडेंट्स, प्लूरल है, द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर डैश प्रेजेंट. यहां पे आपके पास ब्रैकेट में है इज या आर. हम आपको बताए थे कि कोई भी सेंटेंस में, जिस सेंटेंस में जैसे आपको विथ, इन एडिशन टू, एज वेल एज, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड से अगर जो ऐड किया जा रहा है, मतलब द स्टूडेंट और टीचर्स को ऐड किया जा रहा है, तो आपको फर्स्ट जो सबसे आगे वाला वर्ड है उसके अनुसार से आपको वर्ब लगाना है. द स्टूडेंट सिंगुलर है या प्लूरल है? दिस इज इन प्लूरल फॉर्म. आपको अटेम्प्ट करने के समय द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर, या सिंगुलर देके बहुत लोग इज कर देंगे, इज प्रेजेंट, लेकिन वो गलत है. द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर्स आर प्रेजेंट यहां पे होगा. नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है? इफ टू सब्जेक्ट्स आर एडेड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो, then the number and the person of the verb will be according to the last subject. अगर सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो से ऐड किया जा रहा है, तो उसमें आपको जैसे नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, तो आपको सेकेंड वाले नाउन ब्रदर्स के अनुसार से आपको वर्ब यूज करना पड़ेगा. ब्रदर्स प्लूरल है तो इज आर रहा तो आर, वॉज वेयर रहा तो वेयर. नेक्स्ट दिया गया रूल नंबर 16. इफ द नाउन इज इन सिंगुलर और प्लूरल आफ्टर द नथिंग बट, देन वी यूज ए सिंगुलर वर्ब. मतलब नथिंग बट वाटर इज सीन, नथिंग बट ट्रीज इज सीन. अगर जो नथिंग बट, सेंटेंस नथिंग बट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नथिंग बट से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद जो वर्ब आएगा, जैसे यहां पे वाटर है, चाहे यहां पे हम लोगों ने ट्रीज लिया है, ठीक है, डैश सीन, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ ट्रीज चाहे वाटर दिखाई दे रहा. तो नथिंग बट अगर जो सेंटेंस में रहेगा, उसके बाद उसके बाद नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वहां पे वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल नहीं होगा. नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है? इफ ए सेंटेंस स्टार्ट्स विथ ईच, ध्यान से सुनिएगा, अगर सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है ईच से, एवरी से, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, नो वन, समवन, नोबडी, समबडी, देन वी यूज ए सिंगुलर वर्ब. फिर से याद कीजिएगा, अगर सेंटेंस ईच से, एवरी से, आइदर से, नाइदर से, वन, एवरीवन,
एनीवन, नोवन, समवन, नोबडी और somebody से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें आपको वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करना पड़ेगा। एवरीवन वाज प्रेजेंट, somebody has stolen my pen। तो everyone लगता है कि प्लूरल होगा लेकिन आपको वर्ब यहां पे was का प्रयोग करना पड़ेगा। somebody has stolen my pen, somebody has stolen my pen इसमें दिया गया है, इसमें somebody have stolen my pen नहीं होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट दिया गया रूल नंबर, the words such as both, many, some and few are plural। कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे both दोनों, many बहुत सारे लोग, some कुछ लोग and few उसमें भी कुछ लोग, are plural इसका वर्ब क्या है, I'm sorry, they are in plural noun। If these words are used as subject, the verb will be present in plural। अगर ये सब वर्ड्स सब्जेक्ट में सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज किया जाए तो उसका वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। एग्जांपल देखिए, few persons are honest, many of them have come back। Okay, I hope this point is also clear to you people। See, we are trying our level best to come back to you and help you in this manner। Kindly go through the notes, study carefully। When we add two nouns or pronouns, next rule number है, when we add two nouns or pronouns with or, nor, either or neither nor, then the verb will be added according to the nearest noun or pronoun। इसमें आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर जो आपको दिया गया either or, nor, either or एक्सेट्रा से आपको ऐड किया जा रहा है सेंटेंस को, तो जो आपका नियरेस्ट नाउन रहेगा, मींस जो आपके ब्लैंक के सबसे नजदीक में नाउन रहेगा, उस नाउन के अनुसार से आपको वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे प्लीज लुक हियर, योर फर्स्ट ब्लैंक हियर इन दिस पॉइंट, लेट अस लुक इनटू द फर्स्ट ब्लैंक। इसमें क्या दिया गया है, दिया गया either you or he dash guilty। yes, अब आपको दिया गया है when we add two nouns or pronoun, यहाँ पे either you or he, two pronouns are added here, किस चीज से, और से, तो then with the verb which will be added, it will be added according to the nearest noun or pronoun। either को हटा दिए, you और he, ये नियर है या ये नियर है ब्लैंक के अनुसार से, ये नजदीक है आपको में, तो you या he। अगर जो आपके पास ब्लैंक में है is या are, तो आप क्या यूज करेंगे, either you or he is guilty। See, this is a star mark question, बहुत जगह इसका पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चंस, काइंडली पे अटेंशन हियर। नेक्स्ट है आपका, if the subject of the clause is a relative pronoun। relative pronoun क्या क्या होते हैं, जैसे relative pronoun who होता है, which होता है, that होता है, etc। then the verb is used according to the antecedent। अब antecedent क्या है इसमें, let us go with the definition। antecedent is the noun or pronoun which comes before a relative pronoun। जो relative pronoun है उसके पहले जो शब्द आता है उसको हम लोग antecedent कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है the boy who dash playing is my son। यहाँ पे is या are दिया गया है। अब इस चीज में आपको बोला है एंटीसीडेंट। सबसे पहले अब देखिए who, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके आगे जो वर्ड आएगा वो सेंटेंस में एंटीसीडेंट कहला जाएगा। तो यहाँ पे बॉय है, बॉय इज एन एंटीसीडेंट, तो बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज हो जाएगा। यस, अगर जो द बॉयज हु डैश प्लेइंग, यहाँ पे हो जाएगा आर माई सन्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बॉयज हु एंटीसीडेंट के अनुसार से आर प्लेइंग आर माई सन्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। नेक्स्ट कमिंग विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, देख लीजिए, when we add the words with and we use the verb in following manner। अब इंपॉर्टेंट है ये, जब हम लोग कोई भी वर्ड्स को and से आप ऐड करते हैं तो उसका यूजेस कैसे होता है। जनरली when we add two nouns or pronouns with conjunction and, the verb used is plural। जैसे यहाँ पे दिया गया सौरभ एंड गौरव आर ब्रदर्स। यस, तो सौरभ एंड गौरव एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों नाउन है, तो जनरली हम लोग उसमें आर वर्ब यूज कर रहे हैं। लेकिन एक्सेप्शंस क्या है देखिए, when the
singular nouns added by conjunction and it modifies about only one person or one thing, we use singular verb. The poet and philosopher dash come. अब यहां पे देखिए इस एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए. The poet and philosopher dash come. नेक्स्ट आपको अगर जो यहां पे दिया रहता द पोएट एंड द फिलोसफर, द पोएट एंड द फिलोसफर डैश कम. अब इस चीज में देखिए, सी द पोएट एंड फिलोसफर डैश कम, यहां भी एंड से जोड़ा जा रहा है. द पोएट एंड द फिलोसफर, यहां भी एंड से जोड़ा जा रहा है. बोथ थिंग्स आर बीइंग एडेड बाय एंड. तो आपको डाउट आ सकता है अगर जो आपको इसमें पुटअप करना हैज या हैव, तो इसमें किसमें हैज होगा, किसमें हैज होगा और किसमें हैव होगा, थोड़ा सा डाउट आ सकता है. लेकिन वेरी वेरी क्लियर पॉइंट आई एम गिविंग यू है. अगर सेंटेंस में द पोएट मतलब एक जगह डेफिनेट आर्टिकल हो और दूसरी जगह कोई भी आर्टिकल ना हो, तो आंख बंद करके रखिएगा कि दिस इज बीइंग टॉक्ड अबाउट वन पर्सन, यह एक ही पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है. तो यहाँ पे हो जाएगा हैज कम. जहां पे द पोएट और द फिलोसफर मतलब द पोएट एंड द फिलोसफर मतलब दो जगह आर्टिकल्स हो, तो यहाँ पे किसी दो पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है, वहां पे हो जाएगा हैव कम. द पोएट एंड द फिलोसफर हैव कम. नेक्स्ट आपको दिया गया है इफ टू डिजिट्स आर एडेड बाय इट कैन टेक आइदर अ सिंगुलर वर्ब और ए प्लूरल वर्ब. अगर दो डिजिट्स ऐड किया जा रहा है, तो जैसे यहां पे दिया 2 and 2 is 4, 2 and 2 are 4. अगर डिजिट्स को आप ऐड कर रहे हैं तो इंग्लिश में आप कोई भी वर्ब आप वहां पे यूज कर सकते हैं. सी वी आर कमिंग टू एन एंड हियर, बट प्लीज पे अटेंशन हियर. आपको क्या पॉइंट दिया गया है, अब देखिए इन दिस थिंग इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ देयर and their subject is according to the main subject which comes after there. ठीक है, अगर सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है there dash a boy, ठीक है, फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट दिया गया है there, क्वेश्चन दिया गया there dash a boy. नेक्स्ट अगर जो हम बोल रहे हैं देयर डैश, ओके वी विल टेक दिस बॉयज. अब इसे देखिए देयर डैश बॉय. अगर जो इफ यू लुक इनटू फर्स्ट सेंटेंस, पहले फर्स्ट सेंटेंस में इफ यू लुक इनटू फर्स्ट सेंटेंस देयर, यहां पर अगर सेंटेंस देयर स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग कैसे इसका वर्ब लाएंगे, वी विल लुक इनटू द लास्ट वर्ड, मेन वर्ड इज या आर हियर. सो देयर इज होगा या आर होगा, बॉय सिंगुलर है, there is a boy. अगर जो हम लिखे थे there dash few boys, तो यहाँ पे are होगा या is होगा, तो boys दिया गया है. yes, there are few boys, are यहाँ पे हो जाएगा. so that is the particular change. next आपको क्या दिया गया है, see last few points which are not very necessary to you in this thing, but till here these particular points was very very important point. I hope you went through explanation. इसमें completely writing all these things and explaining, it will take huge time. It will take nearly 2 hours video, which I know you people won't be attending, won't be watching so long video. It was fine that I went with questions and answers so that you will have some time. Put on your headphones, take a silent place, take out your notebook, take a printout of my notes, sit and explain to yourself. Have you learned this or not? Kindly go through the notes in description box. Get perfect with subject verb agreement. ये एक ऐसा टॉपिक है which will help you in all grammatical subjects, in all grammatical manners. Dear children, I hope you are paying attention. And see, we are particularly working hard and we are about to end the topics and we are coming to an end of these things. So kindly I hope you are paying attention. Refer few books, study well, and we provide you particular notes. Kindly pay attention to that. Practice at your home, discuss with your friends, and I hope I'm there with you all in the comment section. अब एक चीज रहेगा कि if you put down the questions, I'm there to solve the answers. आप questions दीजिए comment sections में.
subject verb agreement. Find out from anywhere in the notebooks, textbook, examinations, किसी से भी निकालिए. कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस को रखिए. मैं कमेंट सेक्शन में आपको हेल्प करूंगा. I'll give you the description. मैं आपको डिस्क्राइब भी करूंगा कि इसमें क्यों लगा ये वर्ब. जिस तरह से मैंने अभी आपको 20 to 25 रूल्स बताए हैं, उसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं. If you are not able to understand. Thank you so much. Now please go with the notes, study well. If you have a PDF, then go take a printout, study well, and revise these things and prepare well for your examinations. Thank you.